Assalamu alaikum. Dear students, hopefully you are fine by the grace of Allah Almighty. As you know that we always start our lesson by discussing our value of the week. That is respectfulness. Receiving respect from others is important because it helps us to feel safe and to express ourselves. Respect means that you accept somebody for who they are, even when they are different from you or you don't agree with them. Respect in your relationships build feelings of trust, safety and well-being. I am your chemistry teacher of grade 9. Now we move towards our lesson, that is covalent bond and its type, polar and non-polar covalent bond. These topics are from chapter number 4 and are very important for examination point of view. First of all, we will discuss covalent bond. The type of bond which is formed due to mutual sharing of electrons is called a covalent bond. That is example. Now, favorable elements. Here you can see the periodic table on the screen. The elements of group 13 to group 17, when they allow to react with each other, they form a covalent bond by mutual sharing of their valence shell electrons. यहाँ आप देख सकते हैं ग्रुप नंबर 13 से 17 तक ये नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स जब भी रिएक्ट करते हैं आपस में तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. मोस्ट प्रोबेबिलिटी कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स के बिटवीन बनता है. Now we'll discuss energy changes. The energy changes during the covalent bond formations are very considerable value. When two atoms approach each other, there are two different possibilities. Number one, attractive force develop between the electrons of one atom and nucleus of the other atom. Second, simultaneously repulsive forces between electrons of the two atoms as well as between their nuclei are also created. और दोनों जब आपस में करीब हैं तो इनमें से जो डोमिनेंट होगा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डोमिनेंट है तो कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाता है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं डोमिनेंट रिपल्सिव वाली डोमिनेंट है तो फिर बॉन्ड नहीं बनता. नाउ विल डिस्कस टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. There are three types of covalent bond. Number one, single covalent bond. Number two, double covalent bond. Number three, triple covalent bond. First of all, we'll discuss single covalent bond. When one electron is distributed by each bonded atoms, one bond pair is formed and it forms a single covalent bond. Representation. The single bond pair is represented by a line between two atoms. Example, here you can see hydrogen has one electron in its valence shell and each hydrogen actually share each one electron between both of them. अगर देखें दो हाइड्रोजन एटम हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं और ये एक बॉन्ड सिंगल लाइन से शो करते हैं. ये आगे देख सकते हैं आप, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बिटवीन सिंगल लाइन है, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंट ए कोवलेंट बॉन्ड, और इसको H2 की फॉर्म में भी लिखते हैं. दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो ये क्लोरीन के बिटवीन है, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक इसलिए सिंगल लाइन से शो हो रहा है. एक अनदर एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की, इसमें भी आप देख सकते हैं एक सिंगल लाइन शो हो रही है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में ये शेयर कर रहे हैं. द लास्ट वन एग्जांपल है इसमें मीथेन की, जो कि CH4 इसका पूरा फॉर्मूला है, और इसमें आप देख सकते हैं हर हाइड्रोजन कार्बन एटम के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है. नेक्स्ट विल डिस्कस डबल कोवलेंट बॉन्ड. व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स two electrons, two bond pair are shared and a double covalent bond is formed. Representation.
The two bond pairs are represented by two lines between two atoms. Example. Here you can see the example of oxygen. ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो 6 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं इनके वैलेंस शेल में। दो इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन शेयर करेगा आपस में, जिससे डबल बॉन्ड बनेगा। चूंकि दो इलेक्ट्रॉन 2 पेयर्स को शो कर रहा है, इस तरह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डबल लाइन से। देखें 2 लाइंस हैं बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और ये आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। Another example of double covalent bond is ethene. कार्बन कार्बन बिटवीन आप देख सकते हैं डबल लाइन, जो 2 लाइन शो की गई हैं, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन जबकि कार्बन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, when each bonded atom contributes 3 electrons, 3 bond pairs are shared and a triple covalent bond is formed. Representation. The 3 bond pairs are represented by 3 lines between 2 atoms. Example. यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं नाइट्रोजन की। Each nitrogen atom has 5 valence electron, और वो 5 इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, और इस 3 इलेक्ट्रॉनों के शेयर करने की वजह से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको 3 लाइन से शो करते हैं। वो आगे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन बिटवीन 3 लाइंस से रिप्रेजेंट किया गया है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को, जो कि N2 मॉलिक्यूल बनाता है, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज इथाइन। यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और उसके आगे कार्बन के बिटवीन 3 लाइन से वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड शो किया गया है। Now we will discuss polar and non-polar covalent bond. Non-polar covalent bond. What is non-polar covalent bond? Here is, if a covalent bond is formed between 2 similar atoms, that is also called homoatoms, the shared pair of electrons is attracted by both the atoms equally. Such type of bond is called non-polar covalent bond. This is also called a pure covalent bond. Example. यहाँ हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के एग्जाम्पल है, जिसमें दोनों सिमिलर एटम हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, जो कि इक्वली शेयरिंग है, इसलिए ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को शो करता है। इसी तरह एग्जाम्पल देख सकते हैं क्लोरीन की। दीज आर आल्सो ए सिमिलर एटम्स। ये बॉन्ड बना है 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान, यानी कि होमो एटम्स के बिटवीन। इस वजह से ये भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स है। नाउ विल डिस्कस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. If a covalent bond is formed between two different atoms, that is also called heteroatoms, the shared pair of electrons is attracted by both the atoms not equally. Such type of bond is called polar covalent bond. This is also called impure covalent bond. एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जाम्पल देखें. ये डिफरेंट है, हाइड्रोजन एक डिफरेंट एटम है, क्लोरीन एक डिफरेंट एटम है. जब 2 डिफरेंट एटम्स के बिटवीन बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलर क्यों? क्योंकि 2 डिफरेंट पोल्स बन रहे हैं, एक क्लोरीन पोल और एक हाइड्रोजन पोल. और एक अगर हम इसको बेहतर तरीके से इलस्ट्रेट करें तो ये एग्जाम्पल या एक डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें आप ग्रीन कलर में क्लोरीन को देख रहे हैं. क्लोरीन बीइंग ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2. ये मोर पावरफुल तरीके से अटैक करती है इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको, जिस वजह से इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्लोरीन के ऊपर. ग्रीन कलर के ऊपर आप देख सकते हैं कि सिग्मा के साथ एक नेगेटिव साइन शो किया गया, इसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहते हैं. और ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, 2.2 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए ये कम पावरफुल तरीके से खींचेगा उसको शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और इस वजह से इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा. पोलर कंपाउंड्स क्या हैं?
The compounds resulting from polar covalent bonds are called polar compounds. और इनकी एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पोलर कंपाउंड्स की एग्जाम्पल्स हैं। जो कुछ हमने पढ़ा इसको इस ट्यूटोरियल में इसको हम दोबारा एक व्यू कर लेते हैं ताकि पता चले हमने क्या कुछ पढ़ा है इसमें। We have discussed in this tutorial covalent bond, types of covalent bond, polar bond, non-polar bond and polar compounds. Hopefully you understand everything very clearly in this tutorial, and if you have any question about these topics you can ask from your teacher. Thank you very much for watching this tutorial. Stay home, stay safe and healthy, and stay tuned with us for the next tutorial. Allah Hafiz.